Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary, and with me my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम लेकर हाजिर हैं देश और दुनिया की अर्थनीति, कारोबार और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरें। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा के लिए फोन लाइन पर आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Equity benchmarks rally around 0.9% in sync with positive cues from global markets. Sensex closes at 35,171. Nifty settles at 10,383. Asian stocks appreciate but still on course to end the week lower amid rising number of coronavirus cases across the region. And gold prices climb to 49,058 rupees per 10 grams in the national capital. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों से घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज। प्रमुख सूचकांक 0.9% बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 35,171 पर पहुंचा। निफ्टी 10,383 दर्ज हुआ। एशियाई बाजारों में लिवाली तेज, लेकिन कोविड संक्रमण की बढ़ती संख्या के मद्देनजर साप्ताहिक आधार पर गिरावट के साथ हुआ कारोबार संपन्न। और दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का मूल्य बढ़कर 49,058 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक 0.9% बढ़त के साथ बंद हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 329 अंक यानी 0.94% की बढ़त लेकर 35,171 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 94 अंक यानी 0.9% की तेजी के साथ 10,383 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों में भी लिवाली तेज रही है, लेकिन निवेशकों की दिलचस्पी थोड़ी सी कम देखने को मिली। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.27% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.19% की वृद्धि हुई। Equity benchmarks Sensex and Nifty today rallied around 0.9%, led by gains in Infosys, HDFC Bank, TCS and Reliance Industries amid positive cues from global markets. The 30-share index settled 329 points, 0.94% higher at 35,171, while the NSE Nifty surged 94 points, 0.90% to 10,383. On the other hand, broad indices at the BSE logged marginal gains. Mid-cap appreciated 0.27%, while small-cap added 0.19%. Infosys was the top gainer in the Sensex pack, rallying around 7%, followed by TCS, IndusInd Bank, ONGC, HDFC Bank and HCL Tech. On the other hand, ITC, Bajaj Finance, Kotak Bank and Sun Pharma finished in the red. According to traders, broad-based buying on the first day of the new monthly derivative series and positive cues from global equity markets lifted the benchmarks. Experts said after an unbroken rise in the last 2 weeks, the markets turned a bit volatile this week. This volatility was mainly due to factors like the phenomenal rise in the coronavirus cases in the US and India, the military standoff between India and China at the border, and also with the ongoing spat between China and the US on many issues, including trade and the source of the pandemic. The expert added the domestic bourses for the most part of the week reflected the broad trends in other global markets. Puneet, I hope you're still with us. Yes, Arjun. How would you explain today's market performance with the Sensex going up by 329 points to cross 35,000 after a long time? It's now being called a bull market. Apart from what I've read in the Sensex and Nifty story, there is also news from the Met Department about 20% excess rainfall macroeconomically. How do you see the sentiment improve, especially after the derivative expiry this week? So, Arjun, markets are really responding to a host of factors, like you said,
there is an international sentiment which has to be taken into account. At the same time, we have to look at what is happening on the domestic economy front. And the news is really mixed. So it's not as if that we're getting only positive news or we're getting negative news. I think we're getting some news which is positive. There is some news which is negative in terms of virus cases or the forecast of how the GDP in India is going to actually contract by 4 to 5% in the current year. So that is why we see these kind of swings in the market. And we see sometimes some sectors they do very well. In fact, today, if you look at the market today, the IT sector stocks and oil and energy stocks, they did exceedingly well. IT sector stocks, Infosys went up by 6%. Many other TCS, HCL Tech, all these stocks did very well, because Accenture came out with results in US which are ahead of estimates, and also the belief that IT companies and the tech companies will continue to do well irrespective of the spread of coronavirus. So they were doing very well. Then oil companies in India gained a lot today because government has so far not intervened on this price rise front. So clearly it's a mixed bag. If you really ask me, I think markets are going to take it because we've seen most of the results, corporate results also come out. Not that these results pertain to the first quarter, they pertain to the March quarter. But I think a lot of them are built to reflect the concerns about the market. So if you really ask me, markets have been doing very well. Headline numbers are looking very good. But actually, if you look at the internals, it's a very mixed market. आपने बड़े महत्वपूर्ण बिंदु पर छोड़ दिया है पुनीत, चर्चा को पहुंचा के कि जो आंतरिक स्थिति है वो मिली जुली है। हम आईटी सेक्टर पर आपका ध्यान खास तौर से ले चलना चाहेंगे। आईटी में जो तेजी आज देखने को मिली है वह एक दिवसीय है या इसे माने कि कोरोना का जो संपूर्ण प्रसार होगा, कोविड का जो संपूर्ण प्रसार हम देख रहे हैं वो अब नियंत्रण में आता दिख रहा है, उसका प्रभाव दिख रहा है कि बाकी क्षेत्र की कंपनियों पर जो भी असर पड़े, लेकिन आईटी सेक्टर आने वाले दिनों में भी बेहतर परिणाम दे सकेगा। मनोज जी, जैसे मैंने कहा कि एक्सेंचर काफी महत्वपूर्ण आईटी कंपनी है यूएस में और उनके जो रिजल्ट्स आए हैं उनसे एस्टिमेट से ज्यादा हैं, जो उम्मीद थी उससे बेहतर रिजल्ट्स हैं। और क्योंकि वो सेम जो आईटी कंसल्टिंग या आईटी आउटसोर्सिंग में जो भारतीय कंपनियां काम करती हैं उसी फील्ड में काम करती है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो इंडियन कंपनीज हैं उनके ऊपर कोरोना वायरस का और इसका असर कम होगा। देखिए, कुछ चिंताएं भी हुई थी जब यूएस ने अपने वीजा रूल्स बदले थे और ऐसा लगता था कि उसका शायद असर भारतीय आईटी कंपनीज पर पड़े, पर मुझे लगता है बाजार ने उसको दरकिनार करा है, क्योंकि ऐसा जो एस्टिमेट है उसके मुताबिक मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा वर्किंग पे फर्क पड़ेगा आईटी कंपनी से। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आईटी कंपनीज हैव बिकम द डिफेंसिव सेक्टर। उसमें जो निवेशक हैं वो एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और आज खास तौर से उसमें बाइंग थी, पर मुझे लगता है आने वाले समय में हम आईटी सेक्टर में एक डिफेंसिव सेक्टर की तरफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे। बहुत ज्यादा तेजी में नहीं देखता वहां पर, लेकिन मुझे लगता है वहां पर वैल्यूएशंस और प्राइसेस जो हैं वो ज्यादा स्टेबल रहेंगी, वॉलेटिलिटी कम रहेगी आईटी सेक्टर स्टॉक्स। Puneet, just sticking to the IT index which went up by 5% and adding to it, there has been negative sentiment about the offshore outsourcing and preserving employment in the US. But don't you think it's the poll data that's coming out from the US at the presidential elections that will be held in November might see a different person occupying the office of presidency in the US? Do you think that's the reason why sentiment has improved regarding the IT index? Arjun, in US it is really an evolving situation. I think market valuations or company stock prices, they react to these situations, but I don't think in the long term they really get affected. They would be affected by business prospects, by how the companies are able to cope with the changing equations in the market. I think markets will look for longer term situation. And in fact, even during Trump's tenure in White House, I don't think IT companies have really taken it badly, in the sense that the performance has been rising steadily, even when we had an administration which was not very amenable to them. So I think markets are not really so much bothered about who occupies White House next and what will be the impact on IT companies. Well, in the cash and the futures market, we are seeing
a long build-up in the mid-cap IT space. Let's move on to the PSU banking space right now. Their stock prices have gone up by as much as 10 and 15% in select stocks because of the quarterly results that they've announced. How optimistic are you about the PSU Bank Index, which has been hit the past couple of quarters previously to improve substantially now? So PSU banking space is a very interesting space. If you really look at the March quarter numbers from big banks like Bank of Baroda, PNB, Canara Bank, see, they've come out with large losses. So one would have expected the markets to have actually fallen for them. But on the contrary, we saw the stock prices rise by 10 to 15%, like you said. I think it is because of the fact that the net non-performing assets, the NPAs, they have come down. So these banks have gone for very large provisioning, which is a kind of a precautionary step they've taken, and they've cleaned up the books ahead of the upcoming quarters. So markets are now recognizing the fact that the NPA cycle in PSU banks is at least coming down, is softening significantly, and therefore we have seen significant appreciation in these stocks. And I really expect that going forward, PSU banks, which continue to be very large, strong banks, and most of them have capital adequacy in excess of now 12%, 13%, I think these banks will be able to play an important role in economic development, and I do expect the prices to rise gradually in the next 3 to 4 quarters. पुनीत जी, यदि हम घरेलू आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो किन क्षेत्रों से आशा के अंकुर फूटते नजर आ रहे हैं, यानी सिल्वर लाइनिंग जिन्हें कहते हैं, वो किस क्षेत्र से आपको देखने को मिल रहे हैं अब जब कोरोना प्रसार का एक चरण कह लें पूरा हो चुका है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो उसमें कहां दिख रहा है कि यहां अच्छे संकेत हैं, आने वाले दिनों में हमें और अच्छे कह लें कि परिणाम देखने को मिलेंगे? मनोज जी, देखिए, वैसे तो कई क्षेत्र हैं, जैसे मैं आईटी क्षेत्र की बात करी या फार्मा सेक्टर की बात करी, और दूसरे भी कुछ सेक्टर्स हैं, केमिकल्स हैं, वहां पर अच्छा प्रदर्शन देख रहे हैं। पर मुझे लगता है जो सबसे बड़ा एक ट्रेंड भारत में उभर कर आया है और आएगा आने वाले समय में, वो है रूरल कंजम्पशन। क्योंकि जितनी भी इकोनॉमिक रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, उसमें ये बात साफ है कि जो रूरल इकोनॉमी है उसमें इतना बड़ा हिट नहीं हुआ है। जो ज्यादातर हम डिक्लाइन देख रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वो अर्बन इकोनॉमी में देख रहे हैं, वहां पर चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो। लेकिन रूरल इकोनॉमी और रूरल कंजम्पशन जो है, एग्रीकल्चरल साइड जो है, वहां पर काफी रोबस्ट नंबर्स हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो कमेंट्री आई है रिजल्ट्स के बाद, उन्होंने कहा है कि इस समय हमारे पास ट्रैक्टर्स की रिकॉर्ड डिमांड है, और बल्कि वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं इतनी जितनी डिमांड है। तो ये बात साफ है कि जो रूरल इकोनॉमी है वहां पर अभी काफी प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा है। और रूरल इकोनॉमी से जो कंजम्पशन रिलेटेड है, चाहे वो एग्री केमिकल्स की बात करें या एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट की बात करें, चाहे हम सीड्स की बात करें, और जो एफएमसीजी है, जो कंजम्पशन है वहां पर, मुझे काफी उम्मीद है कि जो रूरल सेक्टर की जो हमारी ग्रोथ है वो बहुत अच्छी रहेगी इस साल। और यदि आप जो हम एरिया अंडर कल्टीवेशन, यानी कितने एरिया में बुआई हुई है अभी तक, वो करीब पिछले वर्ष से 25 से 30% ज्यादा एरिया कल्टीवेशन के अंदर है। तो आने वाले समय में हमें लगता है कि काफी बढ़िया पैदावार भी होगी खाद्यान्नों की, फूड ग्रेन्स की। तो मुझे रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी थीम्स हैं बिजनेस के, मुझे उससे बहुत अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद है। पुनीत, यहाँ हम यानी कह सकते हैं कि जो मानसून की अच्छी बारिश के आसार इस वर्ष भारतीय मौसम विभाग कह रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए, उसके अलावा सरकार की जो नीतियां किसानों के हित में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए गढ़ी गई हैं, बनाई गई हैं, उसका लाभ मिलेगा। और जो अर्थव्यवस्था का इंजन है वो एक बार फिर गांव आधारित होकर, यानी ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ता खपत होगी, मांग बढ़ेगी और वहां से अगला विकास हम देख सकेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा उसको समराइज किया कि ये मुझे लगता है आने वाले 1 या 2 वर्ष जो इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, दैट विल बी लेड बाय विलेज एंड रूरल ओरिएंटेड कंजम्पशन। तो वहां से हमें जो है वो डायरेक्शन मिलेगी। अर्बन इकोनॉमी जो है, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है या सर्विस इकोनॉमी जो अर्बन एरियाज में है, उसमें अभी स्लो डाउन हम देखेंगे, और मुझे लगता है उसमें थोड़ा समय लगेगा उसको रिबाउंड करने में। अभी हम रूरल इकोनॉमी से ज्यादा हमें उम्मीदें हैं। Puneet, briefly, what is the prospect of capital goods, especially now that there is more focus and emphasis on Make in India
ensuring that you have a local manufacturing base and reducing dependence on Chinese imports, especially in the wake of these supply chain disruptions and what's happening on the border? Arjun, I think capital goods is another sector which will benefit from the way things are developing. But usually capital goods sector takes a long time to respond to economic developments. Because usually if you put up factories, if you put up manufacturing capacities, it takes about 1 to 2 years for these plants to fructify because they have to make investments, they have to raise money. So my belief is that if you look at the overall narrative, where construction activity is likely to rise. In fact, you'll be surprised at how strong cement sector has been doing in the last few months. This is despite pressures from the overall economic development. So my belief is that we will see substantial improvement in capital goods, in construction, in these core activities. But my only point is that this is going to take time to fructify. It may take 1 or 2 years to really to become visible. I think most of the immediate gains will be really in rural consumption. Capital goods will benefit, but it will take some more time, I guess. पुनीत, यहाँ पर हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि एक छोटा सा विराम हम लेना चाहेंगे और उसके बाद फिर से हाजिर हो जाएंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो। महामारी से लड़ना है बहुत जरूरी, ज्यादा पास न जाना, रखो 2 गज दूरी। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए अब चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां आज मिला जुला रुख देखने को मिला है। निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से जापान का निक्केई 225 सूचकांक और दक्षिण कोरिया का कोस्पी दोनों 1.1% बढ़त के साथ बंद हुए। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.6% लाभ में रहा। उधर बिकवाली के दबाव में हांगकांग का हेंग सेंग 0.9% लुढ़क गया। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में सार्वजनिक अवकाश के कारण आज कोई कामकाज नहीं हुआ। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक लिवाली चल रही थी। अंतर्देशीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 और फ्रांस का CAC 40 दोनों सूचकांक 1.8% ऊपर कारोबार कर रहे थे। उधर जर्मनी का डेक्स 1.2% बढ़त के साथ चल रहा था। Moving on to the U.S. market, Wall Street's main indices closed higher in choppy trading yesterday, with bank stocks soaring ahead of annual stress test results and helping to offset investor jitters over alarming increases in new coronavirus cases. The recently battered S&P 500 bank sub-index led the gainers for the session after U.S. banking regulators eased rules and investors waited for results of the sector's annual stress test, which helps determine dividend policies. The Dow Jones gained 1.2%, the S&P 500 and the Nasdaq Composite both climbed 1.1%. Puneet, what's your opinion about the bank stocks going up in the U.S. in the background of U.S. banking regulators easing rules? Isn't that going to perhaps result in what's happened in 2008 with the financial crisis because they eased regulations? So what is going on in the U.S. right now regarding banking? So the U.S. market is really responding to some very positive steps by the government. Now, people, of course, view it differently in terms of this huge liquidity injection by the U.S. Federal Reserve, which is not only lending directly to banks, it has now started lending almost directly to companies also because they are buying corporate bonds. So there is this massive injection of liquidity in the U.S. financial system, which is definitely beneficial to U.S. Banking stocks, the financial stocks, and we have seen a lot of these stocks gain significantly in the last couple of months. Of course, then on top of it, the U.S. government has been giving a lot of stimulus, fiscal stimulus, monetary stimulus to the U.S. economy. They have the financial, I would say, firepower
to support the economy, and we've seen those benefits. And the US, if you look at the Dow Jones Industrial Average, it is almost 10-15% within its all-time high. So clearly, in the US, they have been fighting off the decline in equities, which we have seen markets doing very well. My own sense is that the US market, if you look at the headline numbers, they're ahead of the fundamentals. The economy may not support these valuations, but given the liquidity situation, I think we will see all asset classes doing rather well in the next few months, and only gradually we will see the economy pick up and then support these valuations. So I think right now it is because it is you can say that the U.S. Federal Reserve is standing behind U.S. markets. We see this kind of rise. पुनीत, यदि हम आपका ध्यान यूरोपीय जोन की ओर ले चलना चाहें और वहां पर खासतौर से जो दो प्रमुख या तीन कहने प्रमुख अर्थव्यवस्था हैं, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, उसे ध्यान में रखकर देखें तो वहां से क्या संकेत आ रहे हैं? देखिए, यूरोप की इनफैक्ट जो यूरोप से जो डेटा आ रहा है वो काफी एनकरेजिंग है, क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा फास्ट रीओपन हुई है, और बल्कि कुछ देशों से तो ऐसे आर्थिक संकेत आ रहे हैं कि वहां पर जो प्री कोविड लेवल की इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वहां पर उस लेवल तक वो रिकवर कर रहे हैं। हालांकि कोविड केसेस में काफी फ्लक्चुएशन हो रही है। जर्मनी में बीच में केसेस बढ़ गए थे, अब फिर कम आ गए हैं वहां पर। तो पर यूरोप में मुझे लगता है कि जो रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी है वो फास्टर हुई है। अमेरिका में क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं तो काफी चिंताएं भी हैं, वहां पर काफी पॉलिटिकिंग भी है। तो यूरोप की इकोनॉमी शायद जल्दी रिकवर करेगी कंपेयर टू यूएस, और हमने देखा है यूरोप में मार्केट्स आर स्लाइटली मोर स्टेबल देन द यूएस। यूएस में वॉलेटिलिटी बहुत है, यूरोप में वॉलेटिलिटी कम है उसके मुताबिक। एशिया में यदि चीन पर ध्यान दें तो चीन के क्या आसार हैं? वहां पर वुहान प्रभावित हुआ था, बाकी अर्थव्यवस्था में कह लें कि उतना नहीं असर पड़ा। अब जो आसार निकल के आ रहे हैं वहां से क्या संकेत है? देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम चीन के साथ यह है कि वहां का डेटा जो है वो रिलायबल नहीं है। सरकार के जैसा वो चाहती है वैसा वो डेटा वो प्रेजेंट करते हैं, उसकी कोई स्क्रूटनी नहीं होती। तो चीन की जो व्यवस्था है या अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर कमेंट करना बहुत मुश्किल है। कोई पूरे विश्व में यदि आप देखें तो कोई चीन के डेटा पे विश्वास ही नहीं करते हैं, और वहां पर जिस प्रकार से जो चाइनीज डेटा है वो उसको मैनिपुलेट करते हैं अपने मुताबिक। तो मुझे लगता है कि ये हम कमेंट नहीं कर सकते उसके ऊपर, लेकिन डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा चीन की ग्रोथ पर वो कोरोना वायरस का नेगेटिव होगा, क्योंकि दुनिया भर के देश जो है वो चीन पे विश्वास नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते। तो आज तक आने वाले समय में मुझे लगता है कि वहां बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स चीन में नहीं होंगी। अगर चाइनीज कंपनी को अमेरिका में लिस्टिंग से रोका जाता है तो उसका भी काफी असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट जो है चाइना के वो काफी कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। उसका असर हालांकि 2-3 साल में पड़ेगा, पर डेफिनेटली चाइना इज गोइंग टू पे सम प्राइस फॉर द काइंड ऑफ सिचुएशन विच इट हैज क्रिएटेड। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज बिना किसी उतार चढ़ाव के 75 रुपये 65 पैसे के स्तर पर आज बंद हुआ है। पुनीत, रुपया वैश्विक मुद्राओं की तुलना में कहाँ खड़ा है आज? देखिए, रुपए की जो परफॉर्मेंस रही है वीजावी दूसरी करेंसीज वो काफी स्टेबल रही है। हम करीब 75 रुपया डॉलर से लेकर 76 रुपए पर डॉलर के बीच में स्टेबल रहे हैं। हालांकि इस दौरान डॉलर इंडेक्स काफी बढ़ गया था, 102 के करीब चला गया था, वहां से वो घटकर 97 आया, यानी डॉलर में भी काफी फ्लक्चुएशन हुई। उसके बावजूद रुपए की जो कीमत है वीजावी यूएस डॉलर वो करीब 75 से 76 के बीच में स्टेबल है। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस वर्ष हम करंट अकाउंट सरप्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट्स में काफी कमी आई है, गोल्ड इंपोर्ट्स में काफी कमी आई है। दूसरा, भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो $500 बिलियन को पार कर चुके हैं। तो विश्व के जो बड़ी 5-6 अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां पर बहुत बड़े डॉलर रिजर्व्स हैं, उसमें भारत का नंबर आता है। तो मुझे लगता है कि रुपए को लेकर देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपए को धीरे धीरे स्टेबल रखना चाहेगा, धीरे धीरे डेप्रिशिएट करना चाहेगा फॉर ट्रेड पर्सपेक्टिव, लेकिन फंडामेंटल्स जो हैं उसको लेके तो रुपया काफी स्टेबल है। वहां पर कोई रिस्क मुझे नहीं लगता, कोई सडन फॉल एकदम हो या कोई क्राइसिस हो, ऐसा मुझे नहीं लगता।
Well, let's have a look at some more stories now on Market Mantra. The 15th Finance Commission held virtual meetings with its advisory council and discussed various issues confronting the Commission now. The meeting was chaired by the 15th Finance Commission's chairman, N.K. Singh, which was attended by all members and senior officials of the Commission. The members of the advisory council felt that since they had met the Commission in April, national lockdown was further extended till end of May, and now restrictions are being lifted in a phased manner, resulting in gradual resumption of economic activities. However, the impact of the pandemic on the economy and on the fiscal positions of the central and state governments is still highly uncertain. Many analysts and think tanks have reduced the GDP growth projections for 2020-21 due to ongoing social distancing measures in place and local level restrictions in many places. Supply chains are not yet fully restored, which affects recovery process. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों को कोविड-19 महामारी के संकट से निपटने के लिए उठाए गए विभिन्न मौद्रिक और नियामक उपायों के प्रभाव के संबंध में अवगत कराया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की। आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि बैठक शुरू होने पर गवर्नर और उप गवर्नरों ने बोर्ड को वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था की समग्रता में जानकारी दी। बोर्ड को वित्तीय क्षेत्र की स्थिति और कोविड-19 महामारी के संदर्भ में आरबीआई के मौद्रिक, नियामक और अन्य विभिन्न उपायों के बारे में भी अवगत कराया गया। बयान में कहा गया है कि बोर्ड ने मौजूदा आर्थिक स्थिति और महामारी की चुनौतियों पर भी चर्चा की। इसके अलावा बैठक के दौरान जुलाई 2019 से जून 2020 तक की अवधि में आरबीआई की गतिविधियों पर भी विचार विमर्श हुआ। बोर्ड ने अगले लेखा वर्ष जुलाई 2020 से मार्च 2020 के बजट और अन्य नीतिगत मामलों पर भी चर्चा की। आरबीआई ने कोविड महामारी के प्रभाव से निपटने के लिए उद्योगों को सहयोग देने के उपाय किए हैं और प्रमुख नीति दरों में भी कटौती की गई है। पुनीत, यहाँ पर हम आपका ध्यान इस खबर पर आकृष्ट करते हुए समझना चाहेंगे कि जो अगली हमारी नीति आएगी केंद्रीय बैंक की, उसमें किस तरह का रुख होगा और वर्तमान माहौल को देखते हुए क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं आप? देखिए, आज जो मीटिंग थी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग थी, क्योंकि उनका फाइनेंशियल ईयर आरबीआई का जुलाई से जून तक का रहता है। तो ये जस्ट बिफोर द एंड ऑफ देयर फाइनेंशियल ईयर, देयर एनुअल कैलेंडर, उससे पहले बोर्ड मीटिंग करते हैं और इसके बाद एक बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें वो उसके अकाउंट्स फाइनलाइज करेंगे और उसे शायद डिविडेंड सरकार के लिए वो अनाउंस करेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और ये बेसिकली पॉलिसी मीटिंग थी आज की। हालांकि उम्मीद थी मार्केट्स को कि आज आरबीआई एक वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम जरूर अनाउंस करेगा बैंक्स के लिए, लेकिन उसका आज शायद जिक्र नहीं हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में शायद उसके ऊपर जो वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग है कॉर्पोरेट्स के लिए, उस पर शायद वो विचार करेंगे। जो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, एमपीसी की मीटिंग है, उसमें देखिए रिजर्व बैंक के पास अब इंटरेस्ट रेट घटाने का जो हेडरूम है वो बहुत कम रह गया है और वहां से कोई बहुत बड़ा उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। मुझे लगता है जो ट्रांसमिशन ऑफ रेट्स हैं, एक तो वो इम्पोर्टेंट है कि कंपनीज को सस्ते दामों पर रेट लोन मिले, साथ में उनको आसानी से लोन मिले, उसके ऊपर बहुत अब जोर देना होगा। तो मुझे लगता है कि रेट एक्शन पर उतना अब जोर नहीं होगा, जितना कि जो रेगुलेशन और लोन्स लेने की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ताकि बिजनेसेस को आराम से लिक्विडिटी मिल सके। एंड आई थिंक दे विल फोकस ऑन दैट इशू इन कमिंग मीटिंग्स। आइए आगे बढ़ें। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ज्ञान को संपदा में बदलना भारत में विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। श्री गडकरी ने कोविड-19 महामारी के बाद एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि पर चर्चा के लिए अभियांत्रिकी निर्यात संवर्धन परिषद के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में ये बात कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था में सभी संबंधित पक्षों के बीच प्रभावी सहयोग और समन्वय से मौजूदा महामारी से निपटने में मदद मिल सकती है। Let's have a look at the oil market now. In intraday trade, Brent crude prices were trading at $41.30 per barrel, while WTI crude prices were at $38.80 per barrel. आइए चलें सर्राफा बाजार। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी के मूल्यों में तेजी देखने को मिली। सोने का मूल्य 239 रुपए बढ़कर 49,058 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी 845 रुपए उछलकर 49,300 रुपए प्रति किलो हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य $1,764 प्रति आउंस के स्तर पर पहुंच गया। चांदी $17.81 प्रति आउंस रही। यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज जी।
And before we close, a reminder of the headlines. Equity benchmarks rally around 0.9% in sync with positive cues from global markets. Sensex closes at 35,171. Nifty settled at 10,383. Asian stocks appreciate but still on course to end the week lower amid rising number of coronavirus cases across the region. And gold prices climbed to 49,058 rupees per 10 grams in the national capital. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.